ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਹਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਬਿਹਾਉੱਲਾ ਇਰਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਫਾਲੋ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਤਨਸੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਪੂ ਮਰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆ ਕਿਆਮਤ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਆ ਕਿਆਮਤ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਸਿੱਦੀਕੀਅਤ ਦੀ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਚਸ਼ਮੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ। ਇਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਕਰ ਔਰ ਫਰੇਬ ਦਾ ਜਾਲਾ ਤਾਂ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ 1894 'ਚ ਮਰਿਆ ਬਿਹਾਉੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰੀਏ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਯਾਨੀ ਤਨਸੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਮਨਸੂਖੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 73 ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਮਿਸ਼ਕੀ ਮਨਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਲੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਦਮਿਸ਼ਕੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨੇ ਦਮਿਸ਼ਕੀ ਮੀਨਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਫੇਦ ਮੀਨਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਲੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਸੀਲੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਸੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ 10,000 ਮਸੀਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਡੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਮਸੀਲੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਮਰੀਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਓ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਨਸੀਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਸੀਲੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਮਸੀਲੇ ਮਸੀਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਮੁਤਸਾਦਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਮੁਤਸਾਦਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮਾਜ਼ੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚਾਲ ਤਾਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੂ ਚਨੇ ਨਾ ਚਬਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਪਿਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई, कौशल बाजी है अस्सलाम वालेकुम। आप माइक खोल लो। अस्सलाम वालेकुम। यार बड़ा मैसेज आ रहा है। वालेकुम सलाम। आप मुझे कह रहे थे? जी बात करना चाह रहे हैं। आप हुक्म करें। जी जज़ाकल्लाह। कैसी तबीयत आप सबकी? आपने बुलाया तो मैं कम काम कर लेती हूँ। जी जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अच्छा लग रहा है सुनने में आप लोगों को। अल्लाह में आप सबको सलामत रखे। आपको भी ये पता है ना कि जो कुरान मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि दिल में यही है हर दम सहीफ़ा तेरा चूमूं, कुरान के गिर्द घूमूं, काबा मेरा यही है। आपको पता है वो कौन सा कुरान है? कौन सा कुरान है? वो उनके बेटे ने बताया खुतबात महमूद जिल्द 8 में। वो कहते हैं कि अब कोई और कुरान नहीं सिवाय उस कुरान के जो मसीह महमूद ने हमें दिया है, वो वाला कुरान जो उन्होंने दिया। नहीं यार, मैं अभी स्कैन लगा के मेरी वीडियो चेक करें जाके, अभी मैं अपलोड करके आया। पता है क्या बात क्या है? मैं ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है, ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है। मुझे नहीं पता कौन कौन बैठा है क्या है, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। कुरान कुरान ही है और कुरान के गिर्द घूमूं, काबा मेरा यही है, ये हमारा कुरान करीम ही है। मुसलमानों वाला कुरान थे वो कहता है बशीरुद्दीन महमूद अहमद के ये दिल बही कसीरम वाला कुरान हो जाएगा। अगर आप मुसलमानों वाला मानेंगी तो वो तो ये दिल बही कसीरम वाला है।
यहदी में यशा वाला मानना है तो वो वाला कुरान है जो 1857 में उठा लेने के बाद ये नया नाजिल हुआ है मिर्ज़ा साहब पर। वो कहते हैं 1857 में अल्लाह ताला का उठा लिया जाना, वो ये फिर कलाम का लिंक उठा में लिया दिया जाना। हुआ, आपने लिंक दिया हुआ है ना सबूत के तौर पे? जी जी बिल्कुल, स्कैन लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है? मेरी ये वाली जो आईडी जिससे मैं बात कर रहा हूँ इसी पे आप क्लिक करेंगे। अभी मैं अपलोड करके आया हूँ वीडियो, उसको देखें। मैं ज़रूर देखूंगी इंशाल्लाह ताला। और मेरे लिए ये बात इस कदर तकलीफ दे है कि मैं बड़ी फ्रेश बैठी हुई थी, मेरी आवाज़ कांपने लग गई कि ऐसा नहीं हो सकता। बस हम सब के लिए यही बातें तकलीफ दे हैं, वरना वल्लाह हमें भी कोई कुत्ते ने नहीं काटा हुआ, बावले ने। हमें भी इन्हीं बातों से गुस्सा आता है। मेरी कॉल आ रही, मैं आता हूँ। मुझे तो काट लेता होता है जिस वक्त इस तरह की बातें होती हैं। नहीं, बहुत सारी तहरीरात हैं यहाँ पे, आप तो बेहतर जानती हैं। बहुत सारी तहरीरात हैं, एक दो नहीं, बहुत सारी। हालांकि ये जमीमा बराए नेंदे कहाँ गए, चलो ठीक। वाटर भाई अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता जवाब पता क्या ना, किसी भी मिर्ज़ा के सामने बैठ के पूछ लो भाई की लिखे है। जवाब आने लगा ये थले। यार वाटर भाई बहुत कमाल शख्सियत है आप, यकीन माने। अल्लाह भाई, आपके भी हाथ चूम लेने को दिल चाहता है। नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह, आप कल के लाहौरी हो गए हैं तो मुबारक हो आपको। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, आपको भी मुबारक हो। हाँ जी, बहरीन की करने लगे तो गल मैं कह रहा था जवाब क्या आना है, पुछया ना कि भाई कुरान जड़ा वो कुरान हो, ये जड़ा मिर्ज़ा साहब ने सानू दिता है। मैं कहना मशरिक तो लैके मगरिब तक लै जाओ तो सवाल पूछोगे एक ही जवाब आएगा। वो कहणगे भाई असल च मकसद इस तहरीर दा है कि जड़ा फहम मिर्ज़ा साहब ने अता कीता ना, जिहड़ी तफसीर मिर्ज़ा साहब ने अता कीती है, मुराद ओ है कि कुरान दी तफसीर तावील तशरीह ओ लैनी जिहड़ी मिर्ज़ा साहब ने दिती है। ते सूरह आराफ आयत 35 दी तफसीर को तो गुनाह जाएंगे। अगर यही इन्होंने रखना है कि कुरान पाक दी तफसीर और फहम जड़ा ना ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜੋ ਫਹਿਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। सूरह आराफ आयत नंबर 35 दी तफसीर मिर्ज़ा साहब ने आप की है ना, या तो उस तफसीर ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਮੰਨੋ ਕਿ ਨਾਕਸ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਜਲੇਬੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੱਜੋ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕੱਜੋ ਤੀਸਰੀ ਸਾਈਡ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟਰਬਾਈਨ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ठीक है खोल दियो भाई, अगे वो की कहता पानी लै टीवी के गाना कटन दे। देखिए भाई मेरी बात वाटर साहब, ये क्या मतलब सुनने में हमें मिल रहा है? ये क्यों ऐसी बातें हैं कि आप लोग नहीं पढ़ रहे ये किताबों में ये जो चीजें लिखी हुई हैं कि कुरान पाक तो वही है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। जी भाई, तो मिर्ज़ा साहब जिस कुरान की तारीफ कर रहे हैं, उनका बेटा, क्योंकि उसका बेटा बकौल मिर्ज़ा साहब के, आप लोग भी उनको मुस्लिम मऊद ही मानते हैं ना, बशीरुद्दीन महमूद को। जी जी, मुस्लिम मऊद का मानी पता है ना क्या है? तो उसने आके इस्लाह किया, मैं तुम्हें बताता हूँ ये असल में कुरान है क्या। जी जी, तो अगर मिर्ज़ा साहब जिस कुरान की तारीफ और जिसके गिर्द घूमने की कोशिश कर रहे हैं, तो बशीरुद्दीन महमूद साहब उसको तयन कर रहे हैं कि ये वो कुरान नहीं है जो मुसलमान लिए फिरते हैं और उसकी तिलावत करते हैं और नमाजों में पढ़ते हैं या घरों में बैठ के पढ़ते हैं। ये वो कुरान की बात नहीं है। मिर्ज़ा साहब जिस कुरान की बात कर रहे हैं वो कुरान है जो मिर्ज़ा साहब के ऊपर उतरा है। वो कुरान का नाम अल किताब तो नहीं है ये जो 313 बहरीन लेके फिरता है, जिसका ऐसे खुद नहीं पता कि वो कहाँ पड़ी है। अल बहरैन ने तो कोई नहीं किया, ये तो मिर्ज़ा साहब की लिखी तहरीर और बशीरुद्दीन महमूद साहब का फहम बयान है। आप यही समझते हैं जो बशीरुद्दीन महमूद साहब ने तालीम दी है? अच्छा सवाल हुआ है किताब का, तो मैं क्लियर कर दूं। मेरी ड्रॉर के अंदर ये कुरान की जो है बेंद फतन पढ़ा हुआ है। यूसुफ साहब आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, मैं दिखा दें कि भाई हमारा कुरान कौन सा। जी जनाब नजर आ रहा है? सुभान अल्लाह। ये मदीना शरीफ की कॉपी है, ठीक है, पढ़ लें। वाटर साहब ये है कुरान और यही है कुरान। किधर से? मदीना मुनव्वरा से जो है शाया हुआ है, और खोल के भी दिखा देता हूँ।
یہ بسم اللہ کی بات سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے. اور جی اتنی صفائیاں کی کیا ضرورت ہے؟ سمپل ہے، جو بھی بندہ اصولی بات ہے، جو بھی بندہ نہیں یہ دیکھ لیں، وہ ناس کی وہ چلے گئے ہیں بحرین بھائی، وہ چلے گئے ہیں. وہ ناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی جی اصولی طور پر بات ہے، ہم کوئی وہ صفائی دینی تو کوئی چکر ہی نہیں نا. وہ بندہ یہ وہ عام ہوئے گا نا کہ جی شیعہ دا قرآن وکھرا کہ انہاں دی جڑی جان بچ جائے تے انہاں نوں نظر آ کے بھئی ساڈا تے یہ قرآن ہے جڑا بسم اللہ دی بات شروع ہوندا ہے والناس دی سین تے ختم ہوندا ہے. ناصر بٹ صاحب کچھ انگیج کر رہے نے، ویکھنے انشاءاللہ کی کہندے نے. سنو انہاں دی گل سن کے لیا کے نا سناؤ ایتھے آڈیو. بٹ صاحب بہت پریشان ہو گئے. کال آئی ہے، کال انگیج کیتا ہے، مطلب کال آئی ہے. اور بھائی مجھے اتار کیوں دیتے ہو بار بار؟ کسی نے نہیں اتارا، خود کسی نے نہیں اتارا آپ کو واٹر بھائی، آپ خود ہی ڈراپ ہو میں گئے ہو. خود ہی گر گیا ہوں. جی وہ آپ کے سگنل کا پرابلم ہوا ہے، آپ کی آواز بھی ہینگ ہو رہی تھی، اس لیے شاید ڈراپ ہو گئے آپ. انکل شہریار ہیں، بھائی نہیں ہیں، انکل ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیں. سوری انکل ہیں پلیز. سوری. کوئی بات نہیں یار، آپ جس طرح کہتے ہیں خوش. میں نے یہ آپ کی عمر دیکھی اور آپ کی تصویر دیکھی تو آپ تو یار بہت مجھے بھی قابل دکھا عزت. دے یار کوئی، میری تصویر بڑی خواہش ہے مجھے دیکھنے کی. اچھا وہ بعد میں کریں گے، اس وقت جو ابھی موضوع چل رہا ہے نا اس پہ بات کرنا ہے. گھبرا ہی جاتے ہو یار آپ. ڈر آ جاتا ہے نا. آپ یار انکل ہیں بھائی بڑے. آپ نے خطبات محمود پڑھی ہے؟ خطبات محمود ایک لمبا سلسلہ ہے یار. تو اس میں جو بشیر الدین محمود صاحب نے جو بیان کیا ہے قرآن کے بارے میں، وہ بھی پڑھا آپ نے؟ آپ بتا دیں. ابھی جو بیان کر رہے تھے نا عامر بھائی. ہاں تو میرا تو اس سے کوئی اتفاق نہیں ہے. میں تو ساروں سے پہلے شروع ہوں گا کہ فزیکلی قرآن شریف احمدیوں کا فرق ہے اور باقی سارے مسلمانوں کا فرق ہے، تو وہ ہمیں دکھایا جائے. واہ، دکھایا جائے وہ قرآن شریف جو احمدیوں کا فرق ہے. آپ ان سے اتفاق نہیں کرتے کہ جو وہ بیان کر رہے ہیں؟ جی میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، 100 بسم اللہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. آپ سے تو بالکل نہیں کرتا، لیکن یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں نا کہ ساروں سے پہلے تو آپ لفظ با لفظ قرآن شریف اگر احمدیوں کا فرق دکھا سکتے ہیں تو بسم اللہ کریں. دیکھیں میں تو ابھی دکھایا نا، وہ بحرین بھائی نے قرآن تفسیر صغیر بھی پڑھی ہوئی ہے الاسلام پہ، تفسیر کبیر بھی پڑھی ہوئی ہے، سادہ قرآن شریف بھی پڑھا ہوا ہے، مرزا طاہر احمد صاحب کا ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے. تو آپ اس کی عربی عبارتیں ساری کی ساری ہمیں دکھا دیں اگر ایک لفظ بھی کہیں پہ فرق ہے. لیکن یہ بشیر الدین محمود صاحب کو نہیں پتا تھا کہ قرآن پاک میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو بھائی تبدیلی تو نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہوئی ہے، ہمارا فہم آپ سے فرق ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن اٹھ گیا تھا. اب وہ قرآن ہاں اٹھ تو گیا ہے، جب ہم آپ کے ترجمے دیکھتے ہیں جس میں آپ وفات کو پورا لینا کر دیتے ہیں، میں تو ترجمے جب ہم آپ کے ترجمے دیکھتے ہیں تو آپ تو قرآن شریف واقعی پورا بدل کے بیٹھے ہوئے ہیں. ترجمے کی بات تو کر ہی نہیں رہا، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، خالص قرآن کی. ہاں تو قرآن اگر فرق ہے تو ہمیں دکھایا جائے. یہ تو بشیر الدین محمود صاحب سے پوچھا نا، میں تو نہیں کہہ رہا، میرا عقیدہ نہیں ہے یہ بشیر اچھا الدین پھر محمود ہمارا صاحب اور کا آپ کا قرآن شریف سیم ہے؟ آپ بتائیں. آپ بشیر الدین محمود صاحب کو فالو کرتے ہیں؟ ان پر ہم عقیدہ ہے؟ بشیر الدین محمود کو فالو نہیں کرتے، چلیں خود بتا دیں اگر ہمارا قرآن بشیر شریف الدین فرق ہے محمود تو. صاحب کو اگر آپ نہیں فالو کرتے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو اس قرآن کو قرآن نہیں اور مانتے. بھائی پہلے قرآن شریف فرق تو دکھائیں. یہ آپ لوگوں بشیر الدین محمود صاحب نے دکھانا بھائی، میں نے ایک تو لفظ، ایک زیر، ایک زبر فرق دکھا دیں ہمیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ورنہ تو پھر یہ ایک شیطانی ہوگی. یہ شیطانی بشیر الدین محمود صاحب نے کی ہے، نہیں آپ لوگوں کی طرف سے ہے. ہمارا بیان ہی نہیں ہے. بشیر الدین محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے، قرآن تو اٹھ گیا. اصل میں آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ساری تعویلات جو ہے نا وہ باطل تعویلات ہیں. میں نے تو ہم کوئی اس سے تعویل نہیں اتفاق کی، نہیں میں کرتے. تو سیدھا بیان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بشیر الدین محمود صاحب کا. جو غیر احمدی اسی قرآن پاک سے فہم لیتے ہیں نا، ہمارا وہ فہم نہیں ہے. لیکن بشیر الدین محمود صاحب اس چیز کو نہیں مانتے. اچھا نہیں مانتے تو پھر بشیر الدین محمود صاحب نے وہ دکھایا ہے قرآن شریف جو ان کا فرق ہے اور ہمارا فرق ہے. پتہ نہیں، یہ تو ان سے پوچھیں آپ. میں تو بشیر الدین محمود صاحب کا فالوور نہیں تو ہوں. چھوڑیں پرے جس بات کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، باقی تو پھر ساری یہ باتیں آپ کو پتہ کہہ ہوتی دینا ہیں. کہ جی قرآن پاک جو ہے وہ ہے جو مرزا صاحب پر نازل ہوا ہے، تو یہ بات ہاں کہنے کی جی کیا ضرورت ہے ان کو؟ جی مرزا صاحب کے اوپر جو فہم نازل ہوا ہے وہ آپ لوگوں پہ نہیں فہم نازل کی ہوا. بات نہیں، قرآن کی بات ہو رہی ہے.
तो फहम की बात हो सकती है, लफ्जी तौर पर तो हमने ऐसा चलो कुरान पाक देखा फहम नहीं। की कर लेंगे। अच्छा फहम में क्या लिखा हुआ है कि जो सूरा इसरा जहाँ से शुरू होती है 15वां पारा, नबी पाक को अल्लाह ताला मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले गया। सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा। वो मस्जिद अक्सा कादियान वाली है। नबी पाक इधर आए थे महराज की रात। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है वो कादियान वाली मस्जिद अक्सा है। ये आपके कुरान में लिखा हुआ, हमारे कुरान में तो नहीं लिखा हुआ। अच्छा, हमारे कुरान में लिखा हुआ दिखा दें जरा। ये जाके चेक करें अपना कुरान खोल के, आपको नजर आ जाएगा। भाई हम तो खोलते हैं तो उसमें तो नहीं कोई ऐसा लिखा हुआ। भाई वो मस्जिद हमारे अक्सा सारे जो है ना वो कुरान तो हमारे कादियान। अल इस्लाम पे पढ़े हुए हैं, दिखा दें कहीं लिखा हुआ मस्जिद अक्सा कादियान लिखा मेरी हुआ। मेरी बात सुनो ना। यहाँ पर शहरियार सब लोगों ने दिहाड़ी लगानी होती है, लोग हर बंदा हाथ में नहीं। कादियान में मस्जिद अक्सा नाम की कोई मस्जिद है आपकी? रब्वा में भी है मस्जिद अक्सा? हाँ रब्वा में भी है। मिर्जा साहब कहते हैं, मस्जिद हाँ, अक्सा ही है मिर्जा रब्वा साहब, हाँ मिर्जा साहब कहते हैं कि इस मस्जिद की तरफ नबी पाक आए थे मेराज की रात। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। भाई ये बिल्कुल है, ठीक है। इस तरह की बातें हैं आपके कुरान में, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। हाँ जी, तो हमें दिखाई भी जाए ना हमारा जो कुरान है जहाँ पे ये वाली सारी यार, बातें लिखी हुई हैं। मैंने आपको कहा कि आप जाके मसीह मऊद तफसीर मसीह मऊद खोलें, सूरा इसरा खोलें, पहली आयत खोलें। आपको ये ना नजर आया, मेरे पास आ जाना वापस। मैं इधर ही बैठा हूँ लेकिन मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इस वक्त आपको स्कैन खोल के नहीं दिखा सकता। ना नजर आया तो मैं जुर्माना भी दूंगा। तो बात ये है कि तफसीर तो उन्होंने बिल्कुल सही की है। सही की है ना वैसे ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦੀ ਤਰਫ ਆਏ ਸੀ। जी जी। ਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਾਦੀਆਨ ਆਏ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਨਾ? जी जी। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। जी, लैलतुल कद्र साथ तो में मुराद लिखा हुआ है रात कि वो नहीं है। दूसरा मतलब भी सही है और ये मतलब हैं? भी सही है। साथ में लिखा हुआ है दूसरा मतलब भी सही है और ये मतलब भी सही है। दूसरा मतलब भी सही हो सकता है जब बंदा कह दे कि लैलतुल कद्र से मुराद रात नहीं है। जब हमने कहा रात है, हम 14 सदियों से कहते हैं कि एक रात है और वो रमजान की आखिरी अशरे में ताक रातों में से एक रात है। हमारे नबी ने बताया। मिर्जा साहब ठीक है। कहते हैं रात नहीं है। अगर रात नहीं है कह दिया, उसके बाद ये कहने का हक है कोई कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है? तो मिर्जा साहब ने क्या कहा हुआ है इसके ऊपर? आपने पूरे 3-4 दिन ब्रॉडें चलाई हुई हैं, आपको बकायदा हाँ जी जवाब यही नहीं कहा करेंगे। उन्होंने यही कहा कि भाई रात मुराद नहीं है। ये हाँ मैं जी। दिखा दूंगा, जाके देख लें। ये हाँ सूरा जी। कदर की तफसीर खोल के मसीह मऊद अपना उनको देख लें क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इससे मुराद रात नहीं है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो रात वाली तफसीर भी ठीक है और ये वाली इसका तफसीर मतलब- भी ठीक है। इसका मतलब उन्होंने दो मुतजाद बातें कही हैं। एक दफा कहा है रात नहीं है, एक दफा कहा है रात भी है। ये कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी उन्होंने मजाद नहीं की। और आप ये कह रहे हैं ना जो ताक रातों में होती हैं, तो आपके तो पाकिस्तान में ही एक रात में एक शहर में तो जनाब भाई पेशावर एक में मिनट रोजा पहला हमारा होता छोड़ दे। है, हमारा तो आपको पसंद और होता है, लाहौर- हमारा आपको पेशावर का शहरिया साहब, दूसरा हमारा- रोजा होता है और लाहौर का पहला ओ रोजा भाई होता ठीक आपकी है, तो ताक हमारा तो रातें छोड़ नहीं दे। हमारा मिलती। तो दूसरा तीसरा रोजा हो गया, ठीक है। आपकी तो मैं ये ताक कह रातें रहा नहीं हूँ मिलती प्यारे भाई। जो बात आपने कही है पहले उसको सिरे चढ़ा लें। आप कहते हैं कि आपके मसीह मऊद ने ये कहा है कि जी। लैलतुल कद्र से मुराद रात नहीं है, और उसके बाद उन्होंने अच्छा ये भी जी। कहा है कि रात भी है। तो ये मुतजाद ही बात होती है और क्या बात होती है ये? मजाद बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने दो तफसीरें अगर मैं इसके कहूं सामने कि रखी। अगर मैं कहूं कि आपका नाम शहरयार नहीं है, फिर मैं कहूं कि शहरयार आपका नाम भी है, तो किसका क्या अच्छा जी। मतलब है? कि मैं झूठा हूं? मैं मुतजाद बातें कर बिल्कुल रहा ऐसे नहीं हूं, की, मुतनाकिस बातें बिल्कुल कर रहा ऐसे हूं। नहीं की, बिल्कुल ऐसी नहीं की। अगर ऐसे ना हो, मैं अभी गाड़ी रोक के ना दोनों चीजें खोल के दिखाऊंगा। अगर ऐसे ना हुआ, मैं हारा, मैं माफी मांगूंगा कैमरा ऑन करके। अगर बिल्कुल ऐसा मैंने करो। दिखा दिया, माफी लगा मांगी दो कैमरा ऑन गड्डी करके साइड सबके पे। सामने। लगा दो हैं? गड्डी साइड पे, ला दो गड्डी ये साइड बात पे। मैंने अभी मैं लगाता हूँ। अगर मैंने ये निकाल के दिखा दी, कैमरा ऑन करके माफी मांगेंगे सबके सामने? भाई मैं क्यों माफी मांगू जब बात है ही नहीं ऐसी। जब दिखाएंगे तो फिर अगर बात ऐसी करेंगे। ना आप तो हुई, खुद इस ओ पे भाई बातें ऐसी करते ना हैं। हुई, मैं माफी मांगूंगा कैमरा ऑन करके। अगर अच्छा। ऐसी हुई तो आप माफी मांग लेना। अच्छा, आप मुझे ये वाली बात बताएं, मैं माफी ये पहले तब अब नई मांगूं। वाली बात बताएं। अब ये वाली बात बताएं, वो वाली छोड़ दें। अब तो ये यार वाली मुझे जवाब बात दो बताओ। तो आप पता नहीं किधर से भाई ये भागने वाली के बात चक्कर छोड़ में दो, रहते वो हैं। वाली बात बताओ। जब वो वाली बात बता दो, वो वाली छोड़ दो, ये वाली बात बताओ। ये क्या तमाशा है आप लोगों का? अच्छा, मिर्जा साहब पे जो कुरान नाजिल हुआ है वो कुरान नाजिल हुआ है दूसरे वाला कि वो तफसीर है?
कुरान की भी आयतें तरोड़ मरोड़ के मैं नाज़िल क्या हुई हैं। मैं बता सकता हूँ तफसीर और जानते तफसीर हो भी जानी है, तावील हो जानी है, फहम हो जाना हुन। हाँ कुरान जब की है आयतें भी तवील फहम कुरान की तो आयतें भी और तरोड़ क्या मरोड़ करें। के आयतें नाज़िल की मैंने हैं, पहला है ना? एतराज ही ये किया है कि लफ्जी कुरान शरीफ दिखा दो अरबी वाला, अगर हमारा फर्क है तो दिखाओ हमें। अगर मैं कुरान की वो आयतें जो कुरान में हैं उनको मरोड़ा हाँ। देकर दिखा दूं मिर्जा का देने पर नाजिल होती, फिर मान लेंगे? मरोड़ा देकर कुरान नाज़िल की होती है। आयतें, कुरान तो की उसके बाद आयतें, हमने अपने कुरान शरीफ में से वो आयतें बदल के मरोड़े वाली आयतें डाली हैं, बताएं। ये क्या कह रहे हैं यार? क्या हमने कुरान शरीफ बात जो नहीं जमात है। अहमदिया छापती है उसमें वो मरोड़े वाली आयतें छाप डाल दी हैं हमने, असली वाली निकाल मिसाल के तौर मैं देता हूँ, मैं मिसाल देता हूँ आपको। कुरान में है ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, है ना कुरान में? ठीक है, ठीक आदम है तुम इसमें सुकूनत इख्तियार करो, तुम और तुम्हारी ज़ौजा, तुम्हारी बीवी। जी जी। इसको मरोड़ा दे के ना मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है या आदम उस्कुन, या अहमद उस्कुन, या मरियम उस्कुन। मुझे 3 दफा कहा गया है तू भी इसमें रह, अंत व ज़ौजुकल जन्नह, अंत व ज़ौजुकल, यानी आदम को भी डाल लिया, मरियम उस्कुन को भी डाल लिया, और अहमद उस्कुन भी। ये कहाँ से आ गया? तो ये फिर कादियानियों ने कुरान शरीफ जो छापे हैं उसमें ये वाली आयत डाल दी है। कुरान शरीफ की मैं कह रहा हूँ कि आयतों को तरोड़ मरोड़ के वो लहदा लिखा हुआ है, वो मजमुआ लहदा बनाया हुआ है जो सर ये उनके इल्हाम है, ये उनके वो लहदा इल्हाम बनाया है, हुआ है। ये इल्हाम और कुरान की चीज़ है। आयतों को तरोड़ के बनाए हुए हैं। अच्छा जी, तो वो अच्छा, फिर हमारे हमने कुरान में अपने तीसरी कुरान में सुनो शामिल मिसाल। कर ली है। सुन ले हमारे कुरान में अच्छा। कुरान की आयत है सूरह फतह की, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। आपके कुरान में ये कौन मोहम्मद है? मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद कौन है? मोहम्मद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद हैं। मिर्जा नहीं। साहब कहते हैं व्हाट्सएप- कि इस वही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया। और भाई ये तो हाँ, रूहानी तफसीर हो खजाना। गई ना। ज़ाला। जनाब वही यही तो सवाल है वाटर साहब, वही कुरान की आयत नबी पे नाजिल हो, तफसीर मुख्तलिफ है। वही और कुरान की आयत के मेरे चंदा ये मिर्ज़ा साहब पे आए तफसीर जो हैं। है, आप सारों से पहले तो वो कुरान शरीफ हमें दिखाएं जो सारा फर्क नाजिल हुआ हुआ है, और हमने अब फिर कुरान शरीफ भाई में से ये तो असली उनसे आयत मैंने निकाल कभी के अभी फर्क क्या नाजिल किया? छाप मैंने दिया। तभी ये कैमरा- मुतालबा मैंने अभी बशीरुद्दीन महमूद कैमरा- अहमद से करें। जब कैमरा खोल बशीरुद्दीन के भी महमूद दिखा अहमद वो तो दिखा दिया ना, मैं कह रहा हूँ कि बशीरुद्दीन महमूद अहमद से सवाल करें कि ये कौन सा कुरान है जो तुम कहते हो कि अब कोई और कुरान नहीं है सिवाय उसके जो मसीह मऊद ने हमें दिया है, वो कौन सा कुरान है? और जो वो मुसलमानों कुरान के घर में शरीफ की वो कौन सा तफसीर है? है, वो कुरान भाई शरीफ ये की तो उनसे तफसीर है। पूछे ना, भाई ये तो उनसे पूछे ना, उन्होंने कहा ये बात कही है कि इससे मुराद तफसीर है। भाई हमें तो अपने खलीफों की बात समझ आती है, अब आपको समझ ना आती हो तो हम क्या कर सकते हैं। बात अब ठीक है, आपको समझो जा वफात का आपको वफात का मतलब समझो पूरा जाके पूरा जो लेना खलीफा समझ आता कहते हो, हैं। और हमें वफात का मतलब फौत होना समझ आता हो, तो हम क्या करें। मैं वही कह रहा हूँ, जो आपको समझ आता है आप वो समझें, जो हमको समझ आता है हम वो सुभान समझेंगे। अल्लाह, बहुत अच्छी और बात। कुरान ने कहा कद तबय्यना रुश्द मिनल गई, आप हदायत सारों ने गुमराही गलत से तफसीरें साफ कुरान अलग हो शरीफ की चुकी की है। हुई हैं। आपने मिर्जायत कुरान शरीफ की इस्लाम से- तफसीरें गलत तफसीरें की हुई हैं। ठीक है, हमारी गलत है, आपकी सही है ना। आप हाँ अपनी जी। सही लेके लैदा हो जाएं, आप इस्लाम में घुसने की कोशिश ना करें, उम्मत का भाईजान हिस्सा हम बनने की आपके कोशिश ना इस्लाम में करें। कब घुस रहे हैं, हम आप तो लैदा आपके हो, इस्लाम आप को लैदा गलत हो मान ना। रहे हैं, आपके भाई तर्जुमे गलत है। गलत मान के फिर दोबारा इसके साथ चिमटने की कोशिश ना करें ना, घुसने की कोशिश ना करें मुस्लिम भाईजान इस्लाम कहें कि आपका हम नहीं है, अल्लाह का है। कहें कि हम मुस्लिम उम्मत से, और यार इस्लाम ही नाम रख ले अपना, जो भी रखा हुआ है, कह दें कि हम मुस्लिम उम्मत से अलग हैं, हम मुसलमानों का कोई फर्क नहीं है, बल्कि ये मुसलमान तो है ही कोई नहीं, ये काफिर है सारे, हम असल इस्लाम हमारे पास है। ये चलो कहें, जी ठीक है, वो ये सच कह बोलें, देते हैं, कह देते हैं। मुसलमानों का हिस्सा बनने की कोशिश ना करें, नहीं बनते जी, कह देते हैं। बस इतनी बात। यार आप मेरे से हाँ लड़ते जी। क्यों इतना ज्यादा? भट्ट मैं साहब क्या बात ही कहते शुरू हैं करता जी? हूँ, लड़ असद साहब को भट्ट साहब ऐसे दी। जैसे मैं कोई भट्ट आपका साहब- मुलाजिम लगाऊं यार, इस तरह लड़ाइयाँ नहीं मेरे नहीं साथ नहीं करते नहीं हैं। नहीं नहीं कोई मुलाजिम गल गल नहीं ते है, लड़ाई उस तरह ये लड़ाई सच्चाई, करनी है कि फिर गालां कटन नु दिल कर रहा बनी। ये तलक सच्चाई है भाई, ये तलक सच्चाई है, इसको थोड़ा पहले डाइजेस्ट सच्चाई करने के बचाई लिए। नहीं है, सच बोला करें दुनिया से। हमारे सारा लिटरेचर पढ़ा हुआ है अल इस्लाम के ऊपर, जरा एक हाँ लफ्ज जी, लिया है कुरान शरीफ का जो फर्क है। बता तो दिया है, या क्या आदम बता उस्कुन दिया? अंत कुछ नहीं वज़ौजुकल बताया। जन्नह लिखा हुआ है कुरान में। अब आपकी जलेबियां हमारे मैंने जब कुरान पकड़ी में- हैं तो फिर आपको घबराहट हो गई है एकदम। 10 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, कितनी हर बातें और चीज बताऊं जलेबी मैं? केड़ी 10 चीज बता दी है। भाई साडी तो मैं- जलेबियां ने जो मैंने कहा है आपने मुझे कुरान शरीफ दिखाया। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਸਾਨੂੰ
कर दो, ठीक है। ਤੁਸੀਂ लेकिन ਆਪਣੀ हमारे ਜਿਹੜੀ साथ ਹਲੀਮ चिंटो ना, ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਝੂਠੀ जो ਤਰਜਮੇ ਦੀ भी है ਹਲੀਮ ना, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ। हलीम है, छोले हैं, जो भी है, हाँ। आप हमसे अलहदा रहो, आपने हमारे तो साथ कुरान न शरीफ प्लीज का आओ। वो मजाक बनाया है कि पूछो ना, हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा कर देते थे और जो तो मुर्दा यार जिंदा हुआ आपने नहीं ना मजाक वो भी उड़ाया, हजरत ईसा आप पर सही है ईमान ना, नहीं लाया। आप सही अकीदा है ना, हाँ जी, आप तो सही है ना, तो आप उसको बिल्कुल फॉलो सही करें। है। ये देखें, follow ये करते देखें, हैं। पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़े जरा। पढ़े आप, मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे मोबाइल की स्क्रीन छोटी है। मेरी भी छोटी है, पढ़ के सुना दो कोई क्या गल लिखा है। रहन दियो सर, फिर ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। प्यार कहाँ दा, प्यार अब कहाँ कोई दा, कुरान नहीं सिवाय कुरान के जो मसीह माऊद यानी देखें यार, आप मिर्जा पूरे गुलाम पाकिस्तान कादियानी को ने बुलाते दिया। हैं तो फिर मैं और आपसे कोई प्यार ना हदीस करूं नहीं तो और सिवाय क्या इसके जो मिर्जा कादियानी की रोशनी में दिखाई दे। हेलो, हाँ जी है लिखा है सामने। करूं? हाँ तो सही लो लिखा है, इसमें क्या खराबी है? जनाब, फिर ये तो इत्तेफाक हो गया ना कि फिर आपका कुरान अलग है, हमारा अलग, बल्कि मिर्जा तो दिखाओ ना यार हमारा लहदा वाला कुरान, दिखाओ हमारा लहदा वाला कुरान। अच्छा, दावा आपके खलीफा का है, वो हम दिखाएं, क्या ही बात है। हाँ जी, मिर्जा बशीर हमारी साहब ने तो ये वेबसाइट लिखा पढ़िए, है, आपका उस पे इस्लाम। हमारे सारे कुरान शरीफ पढ़े हैं, दिखाओ हमारा जनाब फर्क वाला एक मिनट में कुरान। एक इकतबास खोल लूं, आप ये तो और आप जा जब यार, कभी तू जब क्या- कभी पाकिस्तान आज जाए ना, मुसलमान होने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। पाकिस्तान जाए ना फरमाया है कि तो हज़रत रब्बा मसीह माऊद जाके ने फरमाया है साहब से पूछिएगा कि इन जी मसीह माऊद ने फरमाया है कि इनका इस्लाम और है और हमारा और इनका खुदा और है और हमारा और, बिल्कुल सही इनका फरमाया, हज और है और इनका हज और, इसी बिल्कुल तरह सही से फरमाया। इनसे हर बात में इख्तलाफ है। तो यही तो हम कहना चाह रहे हैं बिल्कुल कि सही आपका फरमाया। इस्लाम, तो ये फिर झगड़ा किस बात पे आप कर रहे हैं, जबकि हाँ आप जी। मानते हैं कि आपका इस्लाम और है, हमारा और है, आपका खुदा और है, बिल्कुल हमारा सही, और है, आपका हज बिल्कुल। और है, हमारा और आपके है। सारे झूठे तर्जुमर पर बेस करता हुआ इस्लाम है। जो जनाब, मौलवी ने कह तर्जुमा दिया तो आपने पीछे उसको रह इस्लाम गया। समझ लिया, मैं- जो अल्लाह मैं ने कह रहा कह हूं, दिया तर्जुमा- आपने वो इस्लाम समझा नहीं। हाँ जी, वो आपको समझ आया ना, यानी फिर यही है ना कि आपकी नजर में हम मुसलमान और नहीं भाई आपकी तो फिल्में बन चुकी हैं कि आपका मुल्ला का इस्लाम है, हैं। अल्लाह का इस्लाम नहीं है। आप जो है ईसाइयों के पीछे खड़े होके बुरखा पहन के गोली ना चलाएं, अपने कंधे पे रख के चलाएं। फिर उधर फिल्म बन गई, उधर ये बन गई। आपने मानते हैं ना कि भाई आपका इस्लाम हो रहा है, हमारा हो रहा है, जी हमारा सच्चे वाला। बात खत्म होगी। ठीक होगी नहीं, हम यानी गैर मुस्लिम यानी कि गैर अहमदीस को, बाकी जितने भी आपके बकौल 72 हैं उन्हें आप गैर मुस्लिम ही मानते हैं ना, क्योंकि आप हो गए हकीकी मुस्लिम। मानने हम की हो गए क्या गैर जरूरत है? हकीकी मुस्लिम। आपकी हरकतें और आपके अमाल ही गैर मुस्लिमों वाले हैं। जनाब, अगर आपके मुसलमानों वाले हुए हैं तो हम आपको मुसलमान माने। हाँ जी, मुसलमान के लिए क्या शर्त है? जो आप हदीस पेश करते हैं उसी हदीस के माता है, तो फिर हम भी मुसलमान हुए। हम काबा रुख होकर नमाज पढ़ते हैं, आपके दबीहे में से खाते हैं और कलमा को कौन हैं, से तो फिर हमारे हम तो जबीये में मुसलमान से हैं। आप खाते हैं? कौन से हमारे जबीये में से आप खाते हैं? जब मुझे तो आज कोई तक किसी अहमदी ने दिया नहीं। हम गोश्त। आपके ठीक जबीये है, में देगा से तो खा खा लेते लेंगे। हैं, आप हमारे जबीये में से नहीं खाते। अच्छा, ये किसने कहा आपको? हाँ जी। जब अच्छा तकबीर जब फेरते हैं, तकबीर फेरते हैं, जानवर को क्या क्या बोल के फेरते हैं? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा, ठीक हो गया, तो ये तकबीर तो हलाल है। तो जे हाँ। बिस्मिल ये लाश बोल के को, वो तो फिर तो नहीं ना सिखाना। हाँ बिस्मिल, ये लाश वाला बंदा आपने आमिर साहब देखा हुआ है, हमने पता नहीं क्यों नहीं देखा हुआ। मतलब है, अब हमारे तो कोई बकरे पता नहीं टाते रहे, बिस्मिल चोरी या लाश। करवाते रहे। आप नहीं हाँ पढ़ते जी, बिस्मिल हाँ जी। या लाश अकबर या लाश अकबर या लाश अकबर, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ते। इस तरह करके नहीं आप मुर्गी ज़बह करते हैं? नहीं भाई, दिखा दे ऐसा बंदा, इस तरह हम तो हराम हो चाहते हैं जाएगी। हम ऐसे अहमदी देखे। नहीं तो इस तरह करने हमें से तो क्या ऐसे हराम हो अहमदी कोई दिखाता ही नहीं। इस तरह करने से क्या हराम हो जाएगी मुर्गी? पता नहीं यार, मुझे क्या पता, जब करते ही नहीं है तो फिर हमें क्या पता हलाल होएगी कि हराम होएगी। नहीं तो क्यों, अगर खुदा का नाम नहीं लेकर जनाब, आप तो कहते हैं ना कि यार अल्लाह ताला मतलब की ये है सिफात कि के आप अंदर से जो वो है कहते नहीं है कि ये लाश भी है। गिट्ठे छोड़ने, आप लोग गिट्ठे नहीं छोड़ते, आप पूरे पूरे पिन्ने और चरखियां छोड़ते हैं। नहीं जनाब, अच्छे तो ये लाश तो आप कहते हैं कि अल्लाह की सिफ्तों में से एक सिफ्त ये लाश भी है ना, उसके की तावील अच्छा, जो मर्जी आप करें तो मानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुरान खुला हुआ है जी, कादियानियों का मेरे पास है, कोई भी याद बताए मैं उसका तर्जुमा करता हूँ कि इन्होंने क्या किया है। हर चीज का जी मूसा साहब, मेरे हर पास चीज का मौजूद इन्होंने है। बदला हुआ जी मूसा भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि अरबी वाला कुरान शरीफ तो सेम है ना बिल्कुल मुसलमानों वाला। अच्छा, 1857 में ये अभी उठा ये लिया गया मैंने था, ये जो हमारे घर में था ना, जो हमारे घर में था वो तो 1857 में मिर्जा साहब कहते उठा लिया गया था। जी बिल्कुल सही ऐसे ही है कहते हैं ना? मेरे साथ। हाँ फिर हाँ। बाद में ये नाज़िल हुआ बिस्मिल या लाश वाला। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है। ये लाश ने बाद में सूरह अंदर इमरान नाज़िल किया। याद 55
सूरह जी इमरान मूसा साहब 55। हमारे कुरान अहमदियों के कुरान शरीफ में कहीं पे ये जी, लाश जी। का जिक्र है अल्लाह को उठा के? इसमें ये देखिए कैसे तर्जुमा कर रहे हैं। डालना चाहिए था ना, डालना चाहिए। जी जी जब मिर्जा साहब कि कहते हैं जब कि अल्लाह ने लाश कहा खुदा का नाम ए है, ईसा, तो क्यों नहीं डालते? यकीनन मैं क्यों तुझे नहीं डाला? वफात देने वाला हूँ। बिल्कुल सही फरमाया। ये कहीं भी नहीं है कि कुरान जी के तर्जुमे वफात देने वाला हूँ। ये आप लोगों ने चेंज किया हुआ है। आप लोगों ने इसकी प्रिंटिंग इंग्लिश में करके और सब लोगों को दी है, लेकिन किसी ने भी नहीं यकीन किया आपकी इस बात पे। कोई भी ईसाई कन्वर्ट नहीं हुआ। ईसाई कन्वर्ट नहीं हुआ? ईसाई के कन्वर्ट होने आपकी का ट्राई तो यही होती है सही ना तर्जुमा करने से क्या फर्क है? कि मैं इधर कनाडा में हूँ 30 ईयर से, मैंने तो एक बंदा नहीं देखा कि जो कादियानी कन्वर्ट हो जाए आपके इस अच्छा जी। तर्जुमों की बदौलत। सारों से पहले तो हमने मुसलमान कन्वर्ट करने हैं ना, जो आप जैसे हैं। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਲਵੀ ਬਣਾਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਰੇਲਵੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਅਕਲ ਵੇਖੋ। देखो मेरे प्यारे भाई मूसा, बात ड्रामा दरअसल देखो। ये है कि अगर आप फार्मूले लगाएंगे ना कि हजरत ईसा को अल्लाह मियां देखो यार सीधा ही ऊपर उठा के ले गए, वफात का ਪਰ मतलब ਯਾਰ सीधा ਈਸਾ ऊपर उठा ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ के ਨੂੰ ले गए। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ। तो यार ਈਸਾ मजाक कर ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ रहे ਨੂੰ हैं ਗਾਲਾਂ ਨਾ इस्लाम के ਕੱਢੋ। साथ। ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਕੱਢ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਕੱਢ ਗਏ ਨੇ ਗਾਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। सर मैं कर ईसा रहा हूँ बात, अलैहिस्सलाम- आपसे ही कर रहा हूँ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੂੰ ਬਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢੋ। चलें अब आपका कुरान का मसला तो हल हो गया ना। मैंने जी जी मैंने एक स्टडी की है बड़ी मेहनत के साथ कि जो फेक फॉल्स प्रॉफिट है, झूठी नबी की पहचान क्या है। बड़ी अच्छा स्टडी जी। के बाद मैं आप भाइयों को कुछ बताता हूँ। आप मुझे, झूठे नबी जो होता है उसका अखलाकी मैयार से इनहराफ होता है। झूठ अच्छा। बात करेगा, किरदार का अच्छा नहीं होगा, Very झूठे good. मौजज़ात करेगा, झूठा Very good. नबी सच्चे नबी की नकल करेगा। वेरी गुड। जी तो फिर अब कौन है? आप लोग सब हैं जो मैंने बातें की हैं, आप कंपेयर करें मिर्जा साहब की बुक के साथ। अच्छा, तो फिर आपने जो इतनी मेहनत की है थोड़ा बताएं इखलाक ना। से इनहराफ। हाँ, तो मिर्जा मिर्जा साहब साहब का ने वो ये वाले देख लें। कैरेक्टर जरा दिखाएं। झूठ बात करेगा। मैं आपको 20 बातें मिर्जा साहब की झूठ निकाल देता हूँ। क्या मतलब? किरदार का अच्छा नहीं होगा। क्या उनकी character इसमें में क्या मोहम्मदी flaw था? बेगम का ही सिर्फ वाकया ले लें और छोड़ें। झूठे मौजज़ात करेगा। अच्छा, झूठा मौजज़ा दिखाएं मिर्जा साहब। मिर्जा साहब ने जिंदा मुर्दा निकाल दिया कब्र से। अच्छा, हाँ जी। फिर वापस कैसे कब्र में डाला? और फिर झूठा नबी सच्चे नबी की मुर्दा नकल निकाला करेगा। ना, तो वो मुर्दा वापस कैसे डाला कब्र में? कुरान ये की तो उनसे सवाल करें ना, ये तो वो आप मुर्दा उनसे सवाल बाकी लोगों करें ने कि भी जब देखा कब्र जो से बाहर उन्होंने आ गया निकाला। था, हाँ। तो अंदर कैसे चला गया वापस? हो सकता है कई कुहाड़ी हो उसके पास, वो बंदा कई ने नाल देखा पुट के दोबारा वो बढ़ गया मुर्दा मैं। जो कब्र से बाहर आया वो देखा लोगों ने? खुद ही निकालो। भाई आपके मिर्जा साहब कहते हैं मैंने देखा, मेरे साथ वो बातें देखा भी करता है किसी ने अगर तुम ना साथ तो होते तो। बिल्कुल ठीक है। सांवला मिर्जा रंग था, साहब तो मोटी कह मोटी रहे हैं, वो आंखें तो थी ठीक उसकी। है, लेकिन आप बताएं कि आप लोगों ने वो देखा मुर्दा निकलते हुए? और हम तो नहीं, साथ नहीं थे ना, उन्होंने बताया। अच्छा, तो फिर नहीं आपने उस्ताद उनकी जी बात ਗੱਲ को ਇੱਕ ठीक ਇੱਕ कर ਸਵਾਲ ली। ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਮੁਰਦਾ ਸਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬਰ ਚ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਸੀਹ सांवलिया हाँ, सांवली रंगत, मोटियां आंखों वाला जी ਹਾਂ, सामने बिठा ਉਹਨਾਂ लिया। ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ? दो जानू होके सामने बैठे ऐसे, दो जानू होके। हजरत ईसा अलैहि सलाम ने अगर चिड़िया बनाई और वो उड़ी है, मिट्टी के परिंदे उड़े ने, और चले मिर्जा साहब ने रीम भाई ऐसा आपको इकरार किया कि उड़े ने। दूसरा वाकया भी बताते हैं कि मिर्जा ਉਹਨਾਂ ਤੇ साहब ਇਲਜ਼ਾਮ लाहौर आए। ਲਾਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਆਸਾਬ ਦੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਸਾਬ ਦੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸਮ ਰੇਜ਼ਮ ਅਮਲ ਤਿਰਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੂੜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੰਗੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਹਰੀਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਬ ਦੀ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਹ ਦੀ ਗਰਮੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰਿੰਦਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਜਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਸੀਹ ਮੰਨੋ।
ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਜਜ਼ਾ ਆਪ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੰਨ ਸਮਝ ਲਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਯਾਰ। ਮੌਜਜ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤਿਰਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਊਜ਼ ਬਿਲਲਾਹ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਿल्लाह ਪਨਾਹ ਮਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਨਾਹ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਲਾਨਤ ਹੋਏ भाई झूठ बोलने वाले को। ऐसी बकवास करना कि अमल तिरब करके मिसम रेजम करके नबियां ने असाब दी वर्जिश करके मोजज़े दिखाए ने। ऐसी अहमद साहब, लानती गुफ्तगू एक बात तो कलाम बताएं, आप इतने अल्लाह बड़े की पनाह आलिम हैं। चाहने। हाँ जी, हजरत ईसा ने जो मुर्दा जिंदा किया था वो मुर्दा भी उन पर ईमान नहीं लेकर आया, ये कैसी बात है? ये आपने बताया हमें तो नहीं पता कि मुर्दा ईमान लाया था कि नहीं लाया था। आप बता रहे हाँ हैं, नहीं लाया था। जी, 12 बारी है ना हजरत ईसा की, तो 13वां तो वो मुर्दा अगर होना वो- चाहिए जिसको उन्होंने जिंदा किया था। अगर बकौल आपके असाब की वर्जिश करके तो उस पर रूह की गर्मी डाल के उसको जिंदा किया तो मान बेचारे ने की लिया होना सी। मान ने की लिया होना सी जादू नाल शोभताबाजी देखो करके यार, आपको ते समझाते किसी मुर्दे नु जिंदा कीता जाए। आप कितना बकौल झूठा पढ़ते हैं आमिर साहब, फिर भी नकले आप कुफर रोज एक कुफर झूठ नबाशत बोलते हैं। नहीं तो की उन्हें मान लिया यकीन होना माने जिन्हों कि शोभताबाजी दे वो जरिए कुरान शरीफ हाथ हमें दी अभी तक नहीं आपने दिखाया जो मेरे ओ सामने गल ते फर्क सुनो वाला बाटर साहब, हाथ 1857 दी वाला सफाई कुरान नाल शरीफ दिखाए। ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਤਾਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਰੁਮਾਲ ਚੋਂ। ਉਹ सर ਕਬੂਤਰ ये ਕੋਈ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, 1857 वाला कुरान शरीफ दिखाए ਫੇਕ ਹੁੰਦਾ और ਨਾ। वो वाला कुरान शरीफ दिखा दें जो रसूल पाक पे नाजिल हुआ है कि उसमें डॉक्टर फर्क साहब, है। डॉक्टर साहब, आपको ये तो पता है ना कि मुसलमान जो है वो मिर्जा साहब को क्या मानते हैं? भाई मुसलमान जो मिर्जा मुसलमान साहब मिर्जा साहब पर गलत इल्जाम लगाता है वो मुसलमान ही नहीं। मुसलमान नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक मिर्जा साहब को जो मानते वो तो आपको पता है ना। कौन सा नबी पाक का हुक्म है? कौन सा नबी पाक का हुक्म है नबी पाक जिसके मुताबिक अलैहिस्सलाम ने मुसलमान? फरमाया कि हाँ। कुर्ब क़यामत 30 के करीब करीबन सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम अच्छा, फिर से यज़अमु बताइए ये अन्नहु बात नबी। शुरू कहाँ से हो है रही है? नबी पाक कुर्बे ने क़यामत क्या? कुर्बे क़यामत क्या करीबन होगा? करीबन सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून है, नबी पाक ने फरमाया। ये शुरू कहाँ से हो रही है? अब कुर्बे मुझे, क़यामत? मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जिस मुर्दे को मिर्जा कुर्बे साहब ने क़यामत जिंदा आ करके चुका हुआ बातें है? की थी तो वो भी प्यारे यही भाई, मानता कुर्बे था। क़यामत आ चुका हुआ है? कहाँ पर कुर्बे क़यामत तो लिखा ही नहीं इसमें तो कुर्बे ये क़यामत आपका का जिक्र ही यूज़ नहीं। की बोल रहा है कुर्बे क़यामत। नहीं, मैं करीबन आपको- का मतलब होता है नजदीक, तकरीबन। यानी लगभग। करीबन सलासून का मतलब है 30 के करीब। तकरीबन 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल झूठे आएंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, सब ये दावा करेंगे कि हम अल्लाह के नबी हैं। ये कब आएंगे? कब आएंगे? हैं? कब आएंगे? कुछ आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। तो अभी तो आप कह रहे थे कि कुर्बे क़यामत। क़यामत 21 तक आएंगे। कुर्बे क़यामत तो हमने कहा ही नहीं, हमें कोलों जोड़ी जाते कुर्बे और क़यामत। यार ये यूसुफी कह रहे हैं, ऐसे ही आप मुझे मैंने कहते जा करीबन रहे हैं। मैंने 21 कहा आ है गए हैं, 21 आ गए हैं। 20 की लिस्ट आपके अखबार में भी छपी हुई है, 21वां हमारे पास है, अपनी लिस्ट में हमने छापा हुआ है। 21 आ गए हैं, 9 रह गए हैं मेरा ख्याल है, अगर 30 देखिए पूरे मेरी करने बात हैं। सुने, आप बड़े थोड़े बड़े बहुत कम लफ्ज भी बोल सुने। जाते हैं, हालांकि उनमें से एक मैं आपको भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं चुप करके बैठा हूँ जी आपके ये अखबार मिर्जा में- साहब कह रहे हैं कि जब क्योंकि अभी आपका झूठ मैंने पकड़ लिया है। इसी बंदे ने शहरिया मिर्जा साहब कह रहे हैं, जब अखबार में मैंने- झूठे मुदय्यन का नाम और पूरी कैफियत लिखी, 20 मुदय्यान नबूवत की फहरिस्त छपी हुई है आपके अखबार में। कहूँ तो मैं खोल के दिखा देता हूँ। तो यार 20 की लिखी हो या 50 की लिखी हो, मुझे इससे क्या, मिर्जा साहब उनमें से नहीं है। उसमें मिर्जा जी, साहब का आप- नाम लिखा हुआ है जो हमारी अखबार में छपा हुआ है। नहीं, उन्होंने जी उनका नाम मिर्जा नहीं साहब लिखा, जब कह रहे हैं जब मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो जिस बुजुर्ग की ये कब्र है वो कब्र से निकलकर दोनों जानू होकर मेरे सामने बैठ गए। दोनों अच्छा, जानों के बिल्कुल सही है, जी दोनों जानों के। कब्र से निकल के मिर्जा साहब के सामने बैठ गया जी मुर्दा। बिल्कुल जी, ठीक है। हाँ तो वो बाकी लोगों ने भी देखा जो नहीं, साथ में जब थे। ये जब जिनसे ये उन्होंने मौजूदा शिकायत जी की जी कि अगर आप वो ना साथ होते तो थे मैं उससे उनके, बातचीत भी क्या करता। नाम है, डॉक्टर साहब, जब ये सनौरी मौजूदा उनके मिर्जा साथ साहब थे। कर सकते हैं हाँ, तो तो फिर सनौरी ये ने देखा मौजूदा ये कि हज़रत नहीं ईसा देखा? सनौरी हज़रत साथ ईसा था, अलैहिस्सलाम- वो कहता था मैं बात करना चाहता था, मिर्जा साहब ने बात नहीं करनी थी मुर्दे के साथ मुझे। सनौरी बात करना चाहता था कि मिर्जा साहब हाँ बात करना ये चाहता था? सनौरी भी साथ है उनके। नहीं, सनौरी उस मुर्दे से बात करना चाहता था। जी वो कहता मैं सामने था, पीछे खड़ा था जब मिर्जा साहब ने मुर्दा निकाला। अच्छा, शेख अहमद भी सी, ख्वाजे का अब्दुल्ला गवाह सनौरी भी डड्डू। सी। हाँ। तो सनौरी ने देखा मुर्दा निकलते हुए कब्र में से, और फिर वो वापस चला गया जब ये लोग वहां से गए। तो यार अगर नहीं देखा फिर कह दो झूठ बोला होगा मिर्जा साहब ने, हम क्या कहें, हमें क्या पता देखा कि नहीं देखा। ये हमारे साथ सवाल आप कर यार रहे हैं। आमिर साहब, मैं तो आपको एक दूसरा वाकया भी सुनाने लगा था। वो सीरतुल मादी में लिखा हुआ है, सच्चा है सर झूठा मैं है, भी आपका आपको वाकया सुना दूं मिर्जा साहब का एक इसी तरह का दोबारा, ताकि आपके पास दो हो जाएं एक जैसे वाकयात। अभी आपके पास एक है ना, फिर जोड़ी हो जाए।
मिर्जा हो साहब सकता है एक मुझे दफा पहले ही लाहौर पता शहर हो। की सुनो जी, मिर्जा साहब लाहौर शहर की सैर करने के लिए आए और जहांगीर के मकबरे भी गए। तो आप जब जहांगीर के कब्र के ऊपर फातिहा कहने लगे ना, तो आलम कशफ में उनको नजर आए हजरत अलिफ सानी, और हजरत अलिफ सानी ने कहा कि आपने इसकी कब्र पर फातिहा नहीं पढ़नी। तो मिर्जा साहब ने फिर जहांगीर की कब्र पे फातिहा नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये ले अब आपके वो पास दो मुजद्दिद- वाकयात हो गए हैं। सुन तो लेना। मुजद्दिद अलिफ ये सानी जो थे ना, वो आ गए ना, तो वो भी जो है वो असल में आ गए। मना करके गए, वो- मिर्जा साहब को मना हाँ। करके गए। हाँ जी, तो वो ये बात असली कहाँ वाले आ लिखी गए हुई है? थे। हाँ, ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये अब आपने ढूंढनी है। नहीं, मैं ढूंढ तो आप लूंगा, लेकिन कहते हैं अगर कि आप आपको तो सारी चीजें पता होती हैं, अब आपने ये वाली बात ढूंढनी है। मैंने ये दावा कभी भी नहीं किया कि मुझे दुनिया की हर चीज का पता है। खाम खा आप इल्जाम हाँ। लगा रहे हैं। मैंने कभी ये कहा? तो बस कहाँ ये- आपको ये मैं बताना चाहता था कि हम असल अहमदी हैं, आप नहीं। आमिर भाई अच्छा, ये मिर्जा साहब रेफरेंस- लाहौर गए थे तो हीरा मंडी भी गए थे ना, ये तो पता है ना आपको। उधर तो रैश ये कौन बोल रहा है? हीरा मंडी का लाहौर इतना में शौकीन उनकी कौन रैश- बोला है? राइयों के घर में जी सही है, ये भी है वाला। जाने वाले हाँ जी, ये अहमद भाई कौन साहब है, इनका क्या तारुफ है? बड़ा हीरा मंडी के बड़ा शो रखते थे लाहौर हीरा मंडी जाने का। सर, आप काउंसलर तो नहीं रहे उस आपको इलाके पता के? है जी, जहाँ आपकी अम्मी भी चलो, अब मौजू अब आपका कुछ समझ आया आपके पास कि हमारा फहम का आपसे फर्क है। फिजिकली कुरान शरीफ बिल्कुल वही है, जो झूठ आप बोल भाई, रहे अगर थे ना, फहम का वो अब फर्क था, फहम पक्का का हो फर्क गया था तो कह देते, सिर्फ कह देते कि फहम का फर्क है। उनको नहीं कहना आता था फहम सर का जी, फर्क। आप अगर इतने आराम से मानते होते तो मैं आपको मना लेता। आपका तो काम इसमें होता है राम- ऐसी इसमें ना उल्टी सी राम की इबारत जरूरत लेके है, ना आना। सख्ती की जरूरत है। एक लफ्ज लिखना होता है, फहम का फर्क है, बाकी वही कुरान है। कह सकते थे। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, जितने के जितने फिरके हैं मुसलमानों में, सब में फहम का फर्क है। और क्या फर्क है? किसी ने मुसलमानों कोई में तो अपना फर्क कुरान शरीफ है, तो बना लिए। मुसलमानों में तो फहम का फर्क है, लेकिन गैर मुस्लिमों के साथ तो मुसलमानों का कोई कंपैरिजन नहीं ना। आपको मुसलमान थोड़ी हैं। तो जब आपके आप तो पास कोई नान बंदा नहीं होता था, तो तब तो मिर्जा साहब को सारी दुनिया के आगे किया हुआ था। किसने ये बात कही है आपको कि हमने मिर्जा साहब को आगे किया हुआ था? भाई, हाँ, मिर्जा तो साहब, लोगों आप ने ही नहीं किया हुआ था। आप मिर्जा पैसे ले साहब लेके आज- नहीं मिर्जा साहब के मैं पीछे बता- फिरते थे मैं कि बता- जनाब किताब लिख दो मिर्जा जी, साहब गैर भाई, मुस्लिमों आपके के खिलाफ मिर्जा जो साहब आपके पास आप ही हवाले हैं, अपना हमें कर्ज लिख को के आ दे रहे दो। थे। और किसी ने, और भाई वाटर साहब, इनको किसी ने नहीं आगे किया, ये खुद ही अगड़वांडे बन के आगे आगे हो रहे थे। मैनू तुम सुनो, मेरी गल सुनो। जिस तरह मैं हाँ नहीं जी। यहाँ पर किसी को बोलने नहीं दे रहा, अच्छा, जिस वो तरह क्या मैं बन इन रहे थे? सबको खामोश करवा रहा हूँ ना, अब इन्होंने अगड़वांडे मुझे बन आगे रहे थे। किया हुआ। मैं क्या, जिस तरह मैं जबरदस्ती इनको बोलने नहीं दे रहा, मुझे पता है कहीं बोलना चाह रहे हैं, मैं इनको चुप करा देता हूँ बीच में। ऐसे ही मिर्जा साहब कर रहे थे। सही है, अगड़, इसको कहते हैं अगड़वांडा। अगड़वांडे थे, ठीक है। अगड़वांडा, जिस तरह मैं अगड़वांडा, इस तरह मिर्जा साहब अगड़वांडे थे। बस आमिर साहब देख लें, फिर देखें। उस वक्त मुसलमानों को सबसे सच्चा आदमी मिर्जा साहब लगते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब काम निकल गए तो फिर कभी मिर्जा भी साहब नहीं। कुछ भी नहीं। कभी जब भी अपने नहीं सच्चाई मौलवियों की उनकी दुकानें नजर आई, चमकाने का कभी भी नहीं टाइम आया किसी तो को। मिर्जा साहब कुछ भी नहीं। उस वक्त भाई, इमाम मेहदी शर्मपात मान के बैठे हुए थे। शर्मपात और मलावा माल को उनकी सच्चाई नजर आई हो तो पता नहीं, वो भी बाद में मुकर गए थे। मुसलमानों में से किसी को भी नहीं उनकी सच्चाई कभी नजर आई। तो लोग फिर उनकी ये गवाहियां ऐसे बस। इतने सारे लोग उनकी जमात में शामिल हो गए कादियान जा के, इनकी अगर बात किसी को सच्चाई नहीं नजर आई। इनके अपने अगराज़ व मकासद थे ना। मतलब हम कोई इसराइल से तशरीफ लाए थे हकीम हिंदुस्तान नूरदीन के की कादियान आए। हकीम नूरदीन हाँ। की बेगम फौत हो गई थी, तो उसको अच्छा। कोई अपनी जरूरत थी, वो अपने काम गया हुआ था। और पूरे और आलम लोगों के- इस्लाम में एक औरत नहीं अवेलेबल थी हकीम नूरदीन को। नहीं, मतलब उनको कादियान जहाँ से ही से- रिश्ता मिला। और भाई कहते हैं मैं खाजा साहब गई तो मैं शोरकोट गई तो मेरा काम ना आया तो खैर पढ़ने लगा तो शरीफे टांगे वाले को पै गया। जब अच्छा। खैर पढ़ने पे आता है तो किसी को कहीं से पड़ जाता है। वो हकीम साहब को वहां से खैर पड़ गया ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शरीफे टांगे वाले को खैर पै गया तो उन्होंने कहा चलो अच्छी ठीक है, अच्छी बबो। और हकीम साहब तो बहुत ही मतलब कि फारिग किस्म के और बड़े लो लेवल के कोई आदमी थे ना। कोई उनकी लेवल value उनका नहीं लो थी। था या हाई था, जो भी उनका लेवल था वो आपके सामने। हम किसी को कहेंगे तो आप कहेंगे कि बुरा भला कह रहे हैं। लो लेवल या हाई लेवल उनका जो भी है वो आपके सामने है। बस ठीक है, फिर सर सैयद अहमद खान एवं ही हकीम नूरदीन की तारीफें करते रहे। मेरा एक साथ है, मुसलमानों एक का भाई एक बहुत बड़ा तारीखी आलम है सर सैयद अहमद खान, और वो उनकी काबिलियत का कायल है।
कौन है उसके? तो ये शिगिरत थे, उसी ने तो वफात मसीह का अकीदा पेश किया, उसी की तफसीर से तो चोरी करके मिर्जा साहब ने वफात मसीह लिखी है। चलो यार, ये भी सैयद कोई कोई तो नकल बड़ी किया है। बहुत बड़ी चोरी की है सर माशाल्लाह, सैयद बहुत की बड़ी नकलें चोरी मार की के मौजूदात का इनकार किया, वफात मसीह का दावा किया। है। अच्छा जी, वो तो उस्ताद ठीक है मिर्जा साहब का। तो यानी कि फिर सर सैयद अहमद खान भी जो है वो भी हमारे खलीफों में से एक है, आपके उस्तादों का उस्ताद है वो। यानी कि सर सैयद अहमद खान भी अहमदियों वाली सोच रखते थे, उन पर भी कुरान शरीफ फर्क और नाज़िल हुआ नहीं, होता। सर सैयद अहमदी वाली सोच नहीं रखते, अहमदी सर सैयद वाली सोच रखते हैं। चलो ये भी मान लेते हैं, अच्छी सोच तो वो फिर भी किसी से भी वफात मिल मसीह सकती। का कायल, वो भी वफात मसीह का कायल और मौजूदात का मुनकर था, नेचरी था। और आपके अच्छा। मिर्जा साहब और हकीम नूरुद्दीन ये सारे उसी से मुतासर थे, सर सैयद अहमद बस सर सैयद अहमद खान भी काफिर थे यानी कि? खान। यार मैं इतना बताता हूँ आपको कि सर सैयद अहमद खान जो था ना, हाँ जी, वो जो बातें करता था, मिर्जा साहब ने जब वो बातें लिखी ना अपनी किताब में, अच्छा तो सर सैयद ने कहा यहाँ तक तो ठीक है, बाकी आप जो कुछ कर रहे हैं ना, हाँ इसका एक जवाब सर सैयद अहमद खान ने दिया। मिर्जा साहब गए ना उनको अलीगढ़ मिलने में, हाँ सर जी, सैयद अहमद की वहाँ पर वो कॉलेज था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बाद में बन गई, बिल्कुल सही है। अलीगढ़ कॉलेज में गए मिलने उनको सर सैयद को। हाँ तो सर सैयद ने मिर्जा साहब को कहा कि मेरी बात सुनो, तुम अच्छा पीर जी। बन जाओ, मैं मुरीद बन जाता हूँ। तो वहाँ चलते हैं, वो जो है ना रियासत हैदराबाद, वहाँ चल बिल्कुल के शोभता हम दिखाएंगे तेरी, मैं झूठी करामतें मशहूर कर दूंगा, 2 हिस्से मेरे 1 हिस्सा तेरा। गवर्नमेंट पैसे देगी ना रियासत में, 2 अच्छा हिस्से जी। मेरे 1 हिस्सा तेरा। यानी बिल्कुल जिस सही। तरह की तू शोभताबाजियां कर रहा है, तू पीर बन जाना, मैं तेरा मुरीद बन जाता हूँ। वहाँ उस रियासत में जाके तेरी करामतें मैं मशहूर कर दूंगा कि बहुत बड़ा पीर आया है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इसका नाम है। ये खुद मिर्जा साहब ने सारी बात लिखी है जो मैं बयान कर रहा हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। मिर्जा साहब तो मिर्जा मिर्जा साहब साहब ने- साथ बड़े राजी हुए होंगे कि चलो दोनों के पैसे बनेंगे, मिर्जा साहब बड़े खुश नहीं ना, हुए सौदा होंगे। डील नहीं, डील नहीं हो सकी, लेकिन वो उसने सर सैयद ने डील करने की डील कोशिश नहीं की हो थी। सकी। हाँ। डील नहीं हो सकी क्योंकि वो कहता था 2 हिस्से मेरे 1 हिस्सा आपका। हाँ, अगर वो कहता कि मतलब कि रिवर्स कर देता तो फिर डील हो जानी थी। डील करने के लिए तो अपने आप को कसर लगानी पड़ती है ना, वो भी आया फुद्दू था, 2 हिस्से अपने रखना चाहता। बस यार आमिर साहब, सर वो सैयद बात कहता है ये 2 है। हिस्से मेरे, वल्लाह हाँ। यही लिखा है मिर्जा साहब ने, झूठे पर अल्लाह की लानत हो। जी कहते हैं वो उसने मुझे कहा कि वहां चलेंगे, तुम पीर बन जाओ, मैं मुरीद बन जाऊंगा, मैं तुम्हारी झूठी करामतें वहां पे मशहूर कर दूंगा, रियासत हमें को लाख रुपया देगी ना, 2 हिस्से मेरे 1 हिस्सा तेरा। अब मिर्जा साहब ने आखिया लानत है तेरी इस डील ते, ਇਹੋ जी डील मैनू कबूल नहीं। दौड़ जाता हूं। मिर्जा साहब ने ये उसकी बन- डील को लात मार दी। ये आज के दौर में भी मैं आपको दिखा दे, अब्दी साहब कहते हैं कि फातिह मसीह अहमदियों वाली, सारी चीजें अहमदियों वाली, बाकी अहमदी जो है वो मुसलमान नहीं है। फिर उसके बाद आप मौलाना इसहाक आपके कहते हैं कि कमालात नबूवत जारी है, मगर मिर्जा गुलाम अहमद झूठा नबी है। तो जो ऐसी भी डीलें सर बंदा- हमने बड़ी मेरी देख बात ली हुई है। मेरी बात सुने ना, अगर मौलाना साहब भी होते तो अगर वो भी मिर्जा साहब को कहते कि मिर्जा साहब चलो गल सुनो, मैं भी कमालात नबूवत ते कायल है ही ना, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, 2 ਹਿੱਸੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 1 ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ? जी ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मिर्जा ਮਿਰਜ਼ਾ साहब ਸਾਹਿਬ की 2 डील ਹਿੱਸੇ ਮੇਰੇ बहुत ਤੇ 1 ऊंची ਹਿੱਸਾ है, ਤੁਹਾਡਾ। क्योंकि मिर्जा बहुत साहब ऊंची अल्लाह के डील है। भेजे हुए बंदे हैं, इसलिए उनकी अल्लाह डील उसी लेवल की है। अल्लाह के उनको कोई नहीं, खरीद अल्लाह नहीं के नहीं, सकता। मेरी गल सुनो, मैं बताता हूँ उनकी डील क्या है। उनको 10,000 रुपया जो लोगों ने दिया किताब के, उसमें कोई 1% भी किसी को दिया मिर्जा साहब ने? सारा आप ही खा के डकार मारा ना। तो सर सैयद तो 2 हिस्से लेना चाहता है, फुद्दू मुसलमान। बात समझे हैं? मिर्जा साहब ने वो 10,000 का 10,000 ढिड च पा के डकार मार दिता, उन्हें कहा इंज करी दी डील, फुद्दूओ मैनू कहंदे 2 हिस्से तुहाडे ते किसा मेरा, ये नहीं मैनू कबूल है। यार बात ये नहीं है आमिर साहब, बात ये है कि आप हर चीज को पैसे में तोलते हैं। 10,000 रुपए ऊपर है कि इंसानी जान ऊपर है? मिर्जा साहब को पता था ना वो ज्यादा पैसों आप के मुझे ये कारीगर हैं। बताए कि 10,000 रुपये ऊपर है कि इंसानी जान ऊपर है? लाजमी बात है इंसानी जान ऊपर है। यूसुफ भाई दिखा जब सच्चाई आ जाती है ना तो 313 सिर्फ मुसलमान हुआ करते थे, और वो काफरों के एक बड़े यार वो लश्कर मिसालें, बल्कि सारी ओ काफिर भाई, दुनिया ओ के भाई किन खिलाफ की खड़े मिसालें हो गए देते थे। हो? ओ भाई किन की मिसालें उन्हीं की देते हो? मसाले किन की देते हैं मिसालें जिनको हम फॉलो करते हैं। वो अच्छा जिनकी मिसाल देते हो उनके साथी भी साथ न अल्लाह का रहे। बोले। और मेरी बात सुने, सामने से तीरों की बारिश हो रही थी, वो अकेले खड़े हाँ। हो गए छाती तान के और कहने लगे अनन नबी ला कज़िब अनब्नो अब्दुल मुत्तलिब, आओ मेरे सामने,
मैं नहीं पीछे जाने वाला। वो थे मिर्जा साहब ने छलांग लगा के गाड़ी की पिछली सीट पर, अमृतसर से छलांग लगाई, गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे, ड्राइवर ने दड़ा लिया, शीशे बंद कर लिए, दुड़की लगा। कितने चलेगी तो मिसाल, वो तो सामने छाती तान के तीरों के सामने खड़े होकर कहने लगे मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, मैं झूठा नहीं हूं, मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा, आओ मेरे सामने जिसने आना है। तो ये तो वहां से मोटर में बैठ के पिछली सीट पर मिर्जा साहब ने जिस तरह, हाँ जिस तरह मिर्जा साहब ने टार्जन की तरह छलांग लगाई है ना मोटर की पिछली सीट पर, नहीं लगते। और मार्क 1 नहीं, नबी अलैहिस्सलाम को तीर लगे, नबी अलैहिस्सलाम जख्मी हुए जंग में। ओ भाई नबी अलैहिस्सलाम भागे नहीं कभी, जख्मी तो होना कोई बड़ी बात नहीं ना। और भाई और जान मैदान जंग में जाना ना सारों से बड़ी जंगी टेक्निक होती है। सवारी मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरेगा, तो वही तो है, गाड़ी की पिछली सीट पे बैठ के भाग जाए। यार फिर हमारी तारीफ कर दी ना, हम नहीं भागे भाई, आपने जो मर्जी करने की कोशिश की, आप नहीं भागे। तिफल क्या गिरेगा जो गाड़ी की पिछली सीट पे बैठ के दौड़ जाए। वो ये तिफल कहता है कि मैं भी उस शाह सवार की तरह, लाख दी लानत है। ये तिफल उस शाह सवार के घोड़े के सुम्मों के साथ जो मिट्टी लगी है ना, उसके बराबर भी नहीं है। ये बदबख्त उसके उस शाह सवार के घोड़ों के सुम्मों के साथ लगने वाली मिट्टी की भी बराबरी नहीं कर सकता। वो इतना अजीम शाह सवार था, मैंने कहा कि उनके घोड़े के सुम्मों से लगने वाली मिट्टी की भी ये बराबरी नहीं कर सकता। इसकी मिसालें उनके साथ देते हैं। अजीम शाह सवार हूं। नहीं, क्यों मिसालें इनकी देते हैं उनके लिए? मैं रसूल पाक से अजीम शाह सवार। तो आप क्यों कह रहे हो कि उनकी मिसालें क्यों दे रहे हो? मिसाल तो उसकी देनी चाहिए जिस जैसा बंदा हो। रसूल पाक की मिसाल नहीं दे सकता, नहीं दे सकते क्योंकि जैसा है ही नहीं। ये तो दुड़की लगाने वाला ही है रहेगा भाई, ये तो दुड़की लगाने वाला है, ये तो मैदान से भागने वाला है ना, वो मैदान में खड़े होने वाले हैं। तो क्यों मिसाल दोगे उनकी? मिसाल उसकी दो जो भाग जाता है, मैदान से भागने वाला, उसकी मिसाल दो। मैं आपसे जो छलांग लगा के गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे और गाड़ी वाले को कहे दड़ा गड्डी दड़ा पोड़े पोसड़ी दिया गड्डी दड़ा दौड़ जाए, तू मार सड़ने लगे नहीं मुसलमान अमृतसर के लोग मुसलमान इकट्ठे हो गए क्योंकि मिर्जा साहब ने चाय पीनी शुरू कर दी। रमजान का महीना था, मैं आपको बताता असल बात, पूरी बात क्या है। रोजों का दिन था, रोजों के यानी महीना था, तो मिर्जा साहब तकरीर करने लगे। बात तो सुन लें। हाँ। तकरीर करते हुए मिर्जा साहब ने रमजान के महीने में तकरीर करते करते वो जो चाय वाला कप था ना जिसमें दूध पत्ती बना के किसी ने दी थी, वो मिर्जा साहब ने जैसे ही होंठों से लगाया, लोग जितने सामने तकरीर सुन रहे थे उन्होंने कहा और लाख दी लानत है मां मेहंदी ते रोजियां चाह पीन लगे, खलो जा तेरे बड़े मां मेहंदी दी भैन दी। वो गालियां देने लगे। मिर्जा साहब दौड़ के छलांग लगा के गाड़ी की पिछली सीट पे बैठे दौड़ के। ये हुआ था वाकया पूरा अमृतसर में। सर तो मुझे पता है किसी ऐसे बंदे से मिसाल दो जो दौड़ता हो मैदान से, उसके साथ मिसाल दिया करो। और नहीं सर, नहीं भागे सर, अभी भी आपके सामने ही मौजूद है। अब आप देखें बात कहां से शुरू की, कुरान नहीं भागे। अच्छा मेरी गल सुनो, जड़ा माम क्या नाम है उसका, नूरदीन था ना, और गिटियां तू शलवार चुक के ना पहुंचे टोंग के खलोता सी, किसी बंदे ने आके क्या ओए बंदे पत्थर मार रहे, कहता है जिन्हों मारना सी वो दौड़ गया है, जिसको मार रहे थे वो तो दौड़ गया है, हमें कौन मारता है, हमारा क्या लेना देना इस बात से भाई। चाहे वो पी रहा था, मैं तो नहीं पी रहा था रमजान के महीने में। देखो फिर बहादुर लोग तो ऐसे ही होते हैं, बहादुर लोग ऐसे ही होते हैं जो कहते हैं ओए गड्डी तेज दड़ा पोसड़ी दिया वट्टा दूरू पे आमदे पत्थर आए, एक ने चप्पल मारी, एक ने जुत्ती मारी ला के, रोजा तेरे मां मेहंदी दी ऐसी तैसी बढ़िया मां मेहंदी बने टोंगी आ तो वो जो डायलॉग है कि गड्डी तेज पंजाब पोसड़ी दिया, ये डायलॉग कहाँ पे लिखा हुआ है? ये भी उधर ही लिखा उसके अंदर। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਥਾ ਗੇਅਰ ਲਾ। वैसे आपको ये वाली बात बताऊं कि जिस गाड़ी में गए थे ना, पसीना भी ध्यान है ना। हाँ अमर साहब, ये जिस अंडर टॉप गेयर ला पोसड़ी दिया। अमर साहब, ये जो बंदा था गड्डी में गए थे, ये बंदा हमारा किराएदार रह चुका हुआ है। अच्छा हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ था, वो हमें कहता था कि ਤੁਹਾਡੇ मिर्जा साहब ਦੀ मैं जान बचाई सी,
तो फिर हमने उसको मिर्जा साहब के रिश्तेदारों के पास भेज दिया कि जा पैसे फिर उन्होंने रिश्तेदारों को ले जाए। ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। बिल्कुल सही किया ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਗਾ ਕਿਰਾਇਆ। हाँ, हमारी कोठी पे कब्जा कर लिया था उस बंदे ने। वो कहता है कि ਤੁਹਾਡੇ मिर्जा साहब ਦੀ ਅਸੀਂ जान बचाई सी। हमने कहा जा फिर मिर्जा साहब ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। अच्छा मैं आपको बताऊं, आपका क्या नाम है शहरियार साहब, वो वाकया है जी, हुनैन का, हाँ जो मैंने आपको बात सुनाई है ना, वो वाकया हुनैन का। आप कह रहे हैं नबी पाक को तीर नहीं लगा, लगना किस तरह सी? नबी अलैहिस्सलाम ने अबू सुफियान को कहा, हजरत अब्बास भी थे, अबू सुफियान, दोनों ने खच्चर, सफ़ेद खच्चर की आगे से एक एक तरफ से बाग पकड़ी हुई थी। नबी पाक ने कहा कि ये मुझे रेत की मुट्ठी देना, ज़रा रेत के थोड़ा मिट्टी भर के ना मेरे हाथ में देना। नबी अलैहिस्सलाम ने वो रेत की मिट्टी, वो जो मुट्ठी थी ना, वो ऐसे फेंकी है पहाड़ों की तरफ। वो सामने पहाड़ों में मोर्चे बना के बैठे हुए थे, सब की, किसी के मुंह की, किसी की आंखों के अंदर, किसी के दांतों के अंदर, किसी के नाक के अंदर। वो जब बाद में पकड़े गए, कहते हैं हम में से कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसके मुंह में या नाक में या आंखों में वो रेत नहीं गई जो अल्लाह के नबी ने फेंकी। तो तीर किने मारना सी? तीर अंदाजी तो नहीं बंद होगी जब अल्लाह के सच्चे नबी ने आख्या अनन नबी ला कज़ब अनबनो अब्दुल मुत्तलिब, लिया और मिट्टी मेरे वाल कर, मैं इन्होंने तीर अंदाजा में देखा। अल्लाह के सच्चे नबी ने कल्ले ही दड़ा दिते। इत्थे की है, इत्थे कल्ले ही दौड़ गए। साथी छड़ साथी होते खलोते ने तो मिर्जा साहब गड्डी च बह के दुड़की लगा दी। सुभान अल्लाह, आखो सुभान अल्लाह। अच्छा किन्ने आंदा सी मैं मिर्जा साहब की जान बचाई, किराया माफ करो। हाँ जी, जुत्तियां मारो ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਤਾ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਦੜਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਦਰਜਤ। वो बंदा आपका ही बंदा था, वो आपका ही सुन्नी भाई था। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਗੇਟ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੱਡੀ ਚੱਲ नहीं रही। तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 1973 से पहले आपके सारे भाई हमारी तरफ ही हुआ करते। नहीं, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮਰੀਦ ਸੀ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਮਦੀਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਮਦੀਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਐਸੀ ਦੁੜਕੀ ਲੱਗੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਰਤ ਕੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਯੰਗ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾਈ। ਪੂਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੌੜਨ ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। देख लो फिर, देख लो। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੜਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੜਾਈਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। बिल्कुल। ਵਰਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜਾਫਰ ਜਟਲੀ ਆਇਆ ਨਾ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਲੱਖੀ ਤਵਾਇਫ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਲੱਖੀ ਤਵਾਇਫ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद भी नाल से खुतबात महमूद भी लिखे है कि अंदरूने लाहौर से हम उठ के आ रहे थे, सुनहरी मस्जिद के सामने वो मुल्ला मोहम्मद बख्श जाफर जटली आ गया, नाल उसके लड़के थे, तो उन्हें क्या फड़ लो मसीह मऊद इन्हां दा आज मुनाजरा करके जाना, गुलाम अहमद आज दौड़ी ना इत्थों। कहते हैं जनाब मिर्जा साहब दौड़ के गाड़ी में बैठे, हमने गाड़ी के मोटर, वो लिखता गाड़ी तो नहीं लिखता था, मोटर के शीशे बंद कर लिए, तो वो बाहर से उन्होंने जो कुछ उनके हाथ में चढ़ा, जूता, पत्थर, केले की छिलका, जो भी चढ़ा, किसी के हाथ में मरूद चढ़ा, मरूद ही कट मारा है, फड़ो। तो मिर्जा साहब वहां से भी गाड़ी दौड़ा के भाग गए थे। मिर्जा साहब बड़ी दिल्ली में भी ये ऐसा ही वाकया हुआ है, जगह जगह से भागे हैं आपके मिर्जा साहब, दौड़ने में बहुत तेज थे। हाँ, ये एक जंगी टेक्निक होती है, ये टेक्निक, हाँ बिल्कुल, ये जंग का हिस्सा होती है। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। मामूली सी बात पे इतना बड़ा आदमी अपनी जान नहीं दे देता। आमिर साहब सफवान मुरब्बी बैठा हुआ है और आपकी ऑडियो चला के तो उस पर तबसरा कर रहा है, वो जो सही बुखारी की रिवायत पे ना, वो जो सहाबा किराम पीछे गए और औरत से तलाशी ली थी, वो रिवायत बयान करके ना, तो वहाँ पे मैं उधर गया हूँ, तो मैंने उसको कहा आमिर नज़ीर साहब बैठे हुए और न्यूट्रल ब्रॉड है, आ जाओ पैरां ते पार पाओ तो सामने बह के गल करो। तो आमिर नज़ीर साहब वहाँ बुखारी भी खोल लेंगे और मिर्ज़ा साहब की किताबें भी खोल लेंगे। वो बस जैसे ही मैंने कहा मिर्ज़ा साहब की किताबें भी खोल लेंगे, उन्होंने नीचे उतार दिया मुझे। किताबों का तो ना इनके सामने जिक्र करें, किताबों में जो कुछ लिखा हुआ है ये देख ही ले क्या लिखा हुआ है।
लो जी आमिर साहब, आज का फिर मुकदमा हल हो गया हमारा और आपका कुरान ठीक है। शरीफ में ये लफ्ज़ी तौर जंगी पर कोई टेक्निक फर्क है, नहीं। ये जंगी टेक्निक आपने बताई है कि दिल्ली से भी भागे, अमृतसर से भी भागे, लाहौर से भी भागे। क्यों नहीं ये आमिर जंगी साहब, टेक्निक है, आप 15 बंदे लेके मुझे कत्ल करने आ जाएं तो मैं भागूं भी ना। दौड़ लगा देनी चाहिए। और हाँ, तो वहां क्यों तो नहीं? आए नहीं लाहौर में। एक दफा पीर मेहर अली शाह जब गए ना लाहौर में, तो उन्होंने हाँ कहा जी। भाई आ जाए थे मुनाजरा करिए, तो वो तफसीर लिखिए। तो इन्होंने पहले देख लिया था कि लाहौर में क्या होता है या दिल्ली में क्या, अमृतसर में, तो ये गए ही नहीं। इन्होंने कहा इतने भी दौड़ नहीं पैना, तो बेहतर जाओ ही ना। एक दफा गए आपको ही पता नहीं। है कि सलाउद्दीन अय्यूबी क्या कहा करता होता था और कितनी दफा उसके लिए एक लहदा दस्ता लगाते थे कि सलाउद्दीन अय्यूबी को कत्ल करना है ईसाई लोग, और वो कभी किसी के हाथ नहीं है। ये उसकी